In IELTS speaking, one of the biggest problem that is faced by a lot of students is why. A lot of students, when they come back from their IELTS speaking exam, they just keep on telling that, sir, they asked a lot of why from us. In every question, they were asking why. So why are they asking why in IELTS? I will be talking simply about this in the video, and I am also giving you the solutions that how you can tackle with the problem of why, so that the examiner doesn't ask you, and moreover how to tackle why if you have given the reason also. Sometimes what happens is, for example, I have got a question that which is your favorite car? I say that Mercedes is my favorite car because it has a lot of features, and moreover it is a very luxury kind of vehicle that suits my personality, and I would like to buy this in future. So I have given the why in the answer, but still if the examiner asks me why, then at the time most of the students get underconfident. They get shocked that just we talked about the reason and the examiner is again asking us why. So how to tackle this? You can simply say that as I earlier told you, that Mercedes is a very futuristic car, and moreover it has a very great touch of luxury. That is why it is my favorite vehicle, and I would like to own one of this in future surely. So I have just tackled the situation by again saying the same words in a different language. ओके, सो इस तरीके से आपको वाई को टैकल करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट वाई इन दिस वीडियो, दैट आप किस तरीके से करें कि वाई आपको पूछा ही ना जाए. सो फॉर एन एग्जांपल आई हैव रिटन अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल सो दैट यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वाई. द क्वेश्चन हियर इज, व्हाट आर द रीजंस ऑफ थेफ्ट नाउअडेज. थेफ्ट सिंपली मींस चोरी, कि आजकल चोरी के क्या क्या रीजंस हैं. व्हाट आर द रीजंस ऑफ थेफ्ट नाउअडेज. सो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, most students कैसे आंसर करते हैं इसे. आई वुड से लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस ऑफ थेफ्ट नाउअडेज, सच एज unevenness of wealth, then many people are unemployed nowadays. After that there is a lot of jealousy in the society. So these are the reasons of theft. Now it is meant that examiner will be asking you why, because whenever you are saying something there should be a reason that should be backing up your opinion. आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं उसके बाद एक रीज़न ज़रूर होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं आपकी नज़रों में वो सही है तो क्यों सही है. सो वाई इज हैज़ टू बी आस्क्ड ओवर देयर. सो मैंने जो आंसर पहले बोला था उसके साथ साथ मुझे बिकॉज लगाकर भी बोलना पड़ेगा. लाइक देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस ऑफ थेफ्ट नाउअडेज. द नंबर वन इज unemployment. As we can see that a number of people are unemployed in the society. They are not having any kind of jobs, they are having no source to earn money. So at the end they just choose theft as to get some money and feed themselves. After that, one of the other common reason is jealousy. A lot of people are jealous from each other nowadays. So this sense of jealousy just makes them to do the activities like theft. So मैं एक पूरे रीज़न के साथ इस सिचुएशन के ऊपर पहुंचूंगा, तभी मुझे एग्जामिनर वाई नहीं पूछेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली, हम बहुत अच्छा आंसर दे के आए, बट एट द एंड द एग्जामिनर वाज आल्सो आस्किंग अस वाई. द ओनली रीज़न इज दैट आपने जो पूछा था वो नहीं बोला. जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा था, यू डिडंट आंसर दैट. So just answer the things that are asked to you in the question. Moreover, a lot of students what they will do is, the reasons are asked over here, they would simply go into the solutions that these are the reasons, and after that we can solve this problem by this. So that will also be wrong. If the examiner has given you this much ground, then you should stay in this ground. You should not go out of this. ओके, जो पूछा गया है उसी के अंदर रहकर बोलना है, उससे बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, बिकॉज इट विल बी काउंटेड एज ओवर अटेम्प्ट एंड ज़्यादा बोल दिया आपने, वो चला जाएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन के अंदर. चलिए आगे देखते हैं कि वाई को कैसे टैकल. सो इफ़ यू हैव एक्सप्लेन्ड द वाई एंड एग्जामिनर अगेन आस्क्स यू वाई, देन हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन. मोस्ट ऑफ यू वुड हैव फेस्ड दिस. सो टू टैकल दिस सिचुएशन, जस्ट से एज आई अर्लियर सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इन योर माइंड कि आपने आंसर में वाई बोला भी था या नहीं.
अगर नहीं बोला था देन आप उस सेंटेंस को नहीं बोलोगे। अगर आप वाई का आंसर पहले दे आए हो देन यू वुड से एज आई अर्लियर सेड यू या एज आई अर्लियर टोल्ड यू। आफ्टर दैट एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इन माई लास्ट आंसर और एज आई जस्ट स्पोक अबाउट। सो आप इन दोनों या तीनों लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाए और सिचुएशन ईजन अप हो जाए वहाँ पर। आफ्टर दैट हैव अ स्माइल, प्लीज़ 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 हैव अ स्माइल ओवर देयर। अगर आप स्माइल करना बंद कर दोगे, अगर आप टेंशन में आ जाओगे कि दोबारा वाई पूछ लिया, अब क्या आंसर दो इसका, सो उस सिचुएशन में आपका आंसर हमेशा गलत ही होगा और आपका स्कोर नहीं आएगा। स्माइल रखिए फेस के ऊपर बिकॉज जस्ट इंग्लिश ही बोलनी है वहाँ पर, आप सिचुएशन को ईजिली टैकल कर सकते हैं। एग्जामिनर्स आपको इसलिए वाई पूछते हैं कि आप अपने आंसर पर बने रहें, आप कहीं इधर उधर ना निकल जाएं, बिकॉज दे वांट टू मेक यू टेंस्ड। जानबूझकर आईडीपी आपको वाई पूछता है ताकि स्टूडेंट्स टेंशन में आए और कोई गलत आंसर दें। वो खुद ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करते हैं कि आप गलती वहाँ पर करें, पर आपको गलती वहाँ पर नहीं करनी, बिकॉज दिस इज एन एग्ज़ाम वही है जहाँ पर मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको सही आंसर देने होते हैं एज बीइंग कॉन्फिडेंट। सो यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर हियर। After that, don't get in tension. Please don't get in tension. Examiner should not get to know that you are getting tensed, because at that moment your communication skills will go down, and if he asks a further question to you, you will get in more tension, which will increase the tension up in your mind over there, and you cannot even do any question after that. After that, answer why only. This is one of the most important thing that I am talking about in the video, that is answer why only. If you have explained the why further, आपने why पहले बोल दिया है, उसके बाद आपको फिर से why पूछ लिया है, at that moment आपको दोबारा से वही आंसर देना जो आपने पहले दिया था, बट वर्ड्स वगैरह थोड़े से चेंज कर लेना। आपको why की जगह यहाँ पर what, where, when ये बिल्कुल नहीं करना प्लीज़, बिकॉज अगर आप ये कर दोगे तो आप बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक चले जाओगे, आपका क्वेश्चन ही बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो यू शुड जस्ट स्टे इन द डायमेंशंस ऑफ वाई, नॉट गो आउटसाइड ऑफ दैट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल वाई ओवर देयर, एंड यस एग्जामिनर्स विल बी आस्किंग यू वाई, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई नई चीज़ नहीं है ये, और अगर आपको इंग्लिश आती है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए इस चीज़ की। और कोशिश करो कि वाई हमेशा आंसर के अंदर पहले ही स्पष्ट करके अच्छे से बता दीजिए, ताकि आपको उसके बाद दिक्कत ना आए, एग्जामिनर को पूछने का मौका ही ना मिले वाई दोबारा से आपको। ओके, सो जस्ट हैव अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस इन स्पीकिंग एग्जाम एंड एवरीथिंग वुड बी ग्रेट। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।